Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Parsati Gaura Nitai, Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Jaya Jagannathay Baladev Subhadra, Jagannathay Baladev Subhadra. Jaya Panchtatva, Jaya Panchtatva, Panchtatva, Jaya Panchtatva. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Shiksha Guru, Jaya Shiksha Guru, Shiksha Guru, Jaya Shiksha Guru. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Hare Krishna. Thank you, everyone. Thank you so much, Kajal Mataji, for this beautiful Kirtan. Okay. Thank you, Jia Mataji. I hope the exams of everyone are going fine. I can see Naisha Mataji is there. Radhika Mataji is probably studying. After your exams, I pray and wish that you all, attend regularly. आप regularly attend करें उसके बाद. अभी हम भागवत गीता continue करेंगे. We'll continue with Bhagavad Gita today. Anyone remembers where we left last time? Yes, माता जी 1.15 हम लोग कर रहे थे, आज आपको समझाना है. Okay. 1.15 हम लोगों ने पढ़ लिया था, I remember, जिसमें मैंने बताया था कि सबके अलग अलग कॉन्शियल्स also I told कि किसका क्या कॉन्शियल है. और हमने wait, I'm just taking that out. हाँ, इसमें हमने साइंस ऑफ विक्ट्री भी करे थे, जो मैंने आपको बताए थे कि अभी ये जो 1.12 से 1.20 वर्स नंबर 12 to 20 बेसिकली डिफरेंट साइंस ऑफ विक्ट्री. ये जो कॉन्शियल वो बचा रहे हैं, the different conchals also that they are blowing, this is a sign of victory. वो different उनके signs of victory क्या है ये कि जब भगवान बजा रहे हैं खुद conchal, that is a sign of victory. Then there were different signs of victory कि जो उनका chariot था, that chariot was itself given to Arjuna. अर्जुन किसके पुत्र थे? अर्जुन कौन बताएगा?
माता जी Who? क्या नाम? Yes, yes, Pallavi माता जी. Yeah, इंद्र. very good. तो वो जो चैरियट था वो उनको स्वयं इंद्र, लॉर्ड इंद्रा ने दिया था और बोला था जहां भी ये जाएगा इसको कभी भी डिफीट नहीं होगा. और कृष्णा है भगवान, जो स्वयं कृष्णा उनकी साइड है. कृष्णा तो स्वयं ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनको कोई डिफीट ही नहीं कर सकता. तो वो वैसे ही एक और ये साइन ऑफ विक्ट्री हो गया. जहां कृष्ण होते हैं वहां लक्ष्मी भी होती हैं, तो ये एक और साइन ऑफ विक्ट्री हो गया. फिर जो वो चैरियट था उसके ऊपर हनुमान जी का एक फ्लैग बना हुआ था. दैट फ्लैग इज ऑल्सो अ साइन ऑफ विक्ट्री, क्योंकि हनुमान जी हैज ऑलवेज बीन विक्टोरियस. ही इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, और जहां भी वो होते थे वो सो बलशाली, मतलब वो इतने बलवान थे. तो जहां भी वो होते हैं दैट इज अनदर साइन ऑफ विक्ट्री. हाँ, कृष्णा का पर्सनल प्रेजेंस हो गया फर्स्ट, आप लिख सकते हो ये. व्हाट आर द डिफरेंट साइंस ऑफ विक्ट्री? 1.12 से 1.9 1.20 में दिए हुए हैं. स्वयं कृष्णा है वहां पे, कृष्णा's प्रेजेंस. ओके, कृष्णा's personal presence confirms victory. First point. Second point, goddess of fortune, स्वयं लक्ष्मी, मदर लक्ष्मी was there. Third, कुरुक्षेत्र. मैं ये पूछूंगी, आई एम गोइंग टू टेक अ कहूट क्विज वन ऑफ दीज डेज. आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर दैट. मेरे को एक लेना है आप लोगों का क्विज इसके ऊपर. अब जितने वर्सेस हम कर चुके हैं, मे बी नेक्स्ट वीक ओनली आई विल टेक इफ पॉसिबल. फर्स्ट हो गया कृष्णा's personal presence confirms victory. Second, goddess of fortune, wherever Krishna is there, goddess of fortune is there. She never lives without her husband, therefore fortune is guaranteed. ये 1.14 में बताया गया है. This has been mentioned in 1.14. Then थर्ड इज वेन्यू. कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र. फर्स्ट श्लोक ही यही है. फर्स्ट श्लोक किससे शुरू हो रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. फर्स्ट श्लोक ही यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. द वेन्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो धर्म क्षेत्र है. तो धर्म क्षेत्र में तो धर्म की जीत होगी ना. और कहाँ धर्म कहाँ है? जहाँ धर्म क्या है, जहां भी भगवान है वो धर्म है. सिंपल. whatever is written in the shastras, if you are following that, the word of the Lord is धर्म. धर्म कुछ नहीं है. हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये कुछ नहीं है. धर्म वही है जो भगवान बोल रहे हैं. सिंपल, वो धर्म है. तो जहां भी भगवान है वो धर्म है. तो भगवान किसके साथ है? पांडवास के साथ. तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वेन्यू जो है कुरुक्षेत्र, विच इज अ होली प्लेस. 1.1. फोर्थ इज हनुमान जी का जो फोटो बना हुआ है ऑन अर्जुना's फ्लैग. जो चैरियट था उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ था, उसके ऊपर हनुमान जी थे. और इससे ये पता लगता है कि हनुमान जी जहाँ है वहां लॉर्ड राम है. वेरेवर लॉर्ड हनुमान इज देयर, लॉर्ड रामा इज देयर. तो हनुमान जी जहाँ है वहां पे लॉर्ड रामा भी है, इसका मतलब. तो लॉर्ड रामा उनको हेल्प करेंगे विक्ट्री गेन करने में. ये 1.20 में बताया गया है. दिस हैज बीन रिटन इन 1.20. just write it down anywhere where you have to write. 1.20 में this has been told कि हनुमान जी है वहां पे. और ये हनुमान जी की एक स्टोरी है कि एक बार जो भीम होते हैं, भीमा जो होते हैं, वो जाते हैं किसी फॉरेस्ट में. उनको द्रौपदी, जो मदर द्रौपदी होती है, बोलती है उनको कि आप मुझे एक बार पानी में बह के एक लोटस आता है, बहुत बहुत सुगंधित लोटस होता है वो. इतना खुशबूदार लोटस होता है, इतना खुशबूदार कमल होता है कि उसको देख के जो मदर द्रौपदी है वो इतना खुश हो जाती हैं. वो बोलती हैं कि प्लीज, भीमा को बोलती हैं कि वो अपने पति, उनके हस्बैंड है, उनको बोलती है कि मुझे युधिष्ठिर महाराज को ये देना है. आई वॉन्ट टू गिफ्ट हिम लोटस. तो क्या आप मेरे को ये लोटस और ला सकते हैं? तो जब वो लोटस लेने के लिए जाते हैं, वो देखते हैं वहां पे बहुत सारे इतने सारे जानवर हैं और बहुत डीप डेंस फॉरेस्ट होता है. वहां पे वो देखते हैं कि एक बहुत मंकी लेटे हुए हैं और वो मंकी की पूंछ बहुत लंबी पूंछ है. और वो बोलते हैं, अब बूढ़े मंकी हैं वो, ही इज एन ओल्ड मंकी. और वो बोलते हैं, भीम जी बोलते हैं कि आप हमें, भीम इज he is a gentleman, he is a he is a वैष्णव. वो कभी भी कोई अपराध नहीं करेंगे किसी के प्रति. तो वो बोलते हैं कि आप इस हट जाइए साइड में, ताकि मैं उस साइड जा पाऊं. क्योंकि वो टापना नहीं चाहते हैं अपने एक बूढ़े व्यक्ति को. कैसे उसको टाप के जा सकते हैं? तो बोलते हैं आप साइड में हट जाओ.
तो भीम जी जो मंकी होते हैं बोलते हैं कि आप हटा दो, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं हिल नहीं सकता हूँ। ऐसे आराम से अपना सर के नीचे हाथ करके लेटे हुए हैं मंकी, और वो बोल रहे हैं आप हटा दो मेरी पूंछ, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पूंछ भी नहीं हटा पा रहा हूँ। तो भीम जी बहुत ताकत ना हो, जस्ट इमेजिन, यू रिमेम्बर हमने बात किया था कि भीम जी के पास 10,000 हाथियों का शक्ति है, वो उनको हटाते हैं, वो हटा नहीं पा रहे हैं। सोचिए भीम जी नहीं हटा पा रहे, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट्स, और वो उनको हटा रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू मूव, नॉट एबल टू मूव, नॉट एबल टू मूव। एंड देन व्हाट हैपेंस, भीम जी उनको बोलते हैं कि आप कौन है, उनको समझ आ जाता है कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है। वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं आप कौन है। तो भीम जी अपना, हनुमान जी अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तो भीम जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भीमा भी क्या है, वो लॉर्ड वायु पवन पुत्र ही है, तो दे आर एक्चुअली ब्रदर्स। तो वो अपने भाई को मिलके बहुत खुश होते हैं, और हनुमान जी उनको ब्लेस करते हैं कि आप लोगों की विक्ट्री होगी, जहां भी आप जाओगे यू विल बी विक्टोरियस। और वो बोलते हैं कि जो अर्जुन का रथ होगा उसमें मैं विराजमान रहूंगा, एंड आई विल बी देयर। एंड व्हेन यू ब्लो योर कॉन्शिल, वो उनको ये भी बोलते हैं जब आप अपना शंख बजाओगे, तो वो शंख बजाने से जो आपके एनिमीज होंगे उनके मन में बहुत फियर पैदा हो जाएगा, जो भी गलत काम करने वाले होंगे उनके मन में फियर पैदा हो जाएगा। आप देखिए हम भी हर दिन सुबह जब भी हम आरती से पहले कौंशल बजाते हैं, कहते हैं जो भी कौंशल की आवाज सुनता है ना, उसके जितने पाप होते हैं, बहुत सारे पाप मिट जाते हैं, और बहुत प्योरिफिकेशन होता है। द साउंड ऑफ कौंशल इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। यू ऑल मस्ट लर्न टू ब्लो कौंशल। आप सबको बजाना आना चाहिए, और आप सबको उसकी आवाज सुननी चाहिए हर दिन। हर दिन सुबह आरती से पहले आप कौंशल को ब्लो करिए, उसके बाद भी ब्लो करिए। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हनुमान जी विच हैज बीन गिवन। ये इसका मेंशन आएगा वर्स 1.20 में। देन फिफ्थ है कौंशल। जो सिंबल ऑफ विष्णु है वो क्या है, भगवान विष्णु जो है उनके हाथ में कौंशल रहता है। तो कौंशल बजा रहे हैं, तो जहां कौंशल बज रहे हैं उसका मतलब क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ विष्णु। दिस इज फिफ्थ पॉइंट, conchal is a symbol of Vishnu. So the conchals are blowing and this is a symbol of Vishnu. That means this indirectly indicates that जो भीष्म और पांडवास जो conchals blow कर रहे हैं, उससे ये पता लग रहा है कि भगवान उनके साथ हैं. This is the presence of Lord Vishnu. Now the this has been the symbol of Vishnu. Conchals के बारे में जो बताया गया है वो 1.12 और 1.14 में बताया गया है. 1.12 और 1.14. सिक्स्थ है ये जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियल्स हैं, जो कृष्ण और अर्जुन के जो कॉन्शियल्स को दिव्य बोला गया है. कृष्णा और अर्जुना, लॉर्ड कृष्णा और जो अर्जुन है उनके जो ये शंख है उनको दिव्य बोला गया है, और इसका मेंशन आता है 1.14 में. 1.14 ये छठा पॉइंट था ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियल्स का. सातवां पॉइंट है कि जो भीष्मा का जो कॉन्शियल है वो दुर्योधन को बता रहा है. जब भीष्म बजाते हैं अपना कौंशल, 1.12 में इसका मेंशन है. 1.12 में जब भीष्म अपना बताया जा रहा है कि जब भीष्म कौंशल बजा रहे हैं, जो शंख बजा रहे हैं, उससे दुर्योधन को फियर पैदा हो गया. तो दुर्योधन के मन में, बिकॉज जब वो कौंशल बज रहा है, इट वाज सो स्ट्रॉन्ग that showed that we are going to win. This is seventh point, Bhishma's conchal. Then eighth point is the chariot. The chariot was given to Arjuna by Lord Agnidev. लॉर्ड अग्निदेव ने दिया था उनको, और लॉर्ड इंद्रा ने उनको बूंद दिया हुआ था कि आप कभी हारेंगे नहीं. जो अग्निदेव का चैरियट था, प्लीज करेक्ट दिस, हमने पहले बोला था कि वो जो चैरियट था वो लॉर्ड इंद्रा ने दिया था, वो अग्निदेव ने दिया था. अग्निदेव ने जो चैरियट दिया था अर्जुन को, वो उसको बूंद था, उसको एक ब्लेसिंग मिला हुआ था कि जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, वो जो जितनी डायरेक्शन में जाएगा उसको उसका जीत ही होगा. उसका जीत ही होगा, उसको कभी कोई हरा नहीं सकता. उस आपके वेट या
तो जो उसको बूंद मिला हुआ था कि जितना भी आपका ये होगा कॉन्शियस, जो भी आपका चैरियट होगा, जो रथ होगा, जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगा उसको जीत ही मिलेगा, उसको हार नहीं मिल सकता। और 1.19 में हम आगे पढ़ेंगे अब, जो कॉन्शियस थे पांडवास के, उससे जो कौरवास थे उनके दिल दहल गए थे, देयर हार्ट्स वर शैटर्ड, यू नो, दे वर स्केयर्ड पार्ट, बट इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड। जब कौरवास ने बजाए थे अपने शंख, उससे पांडवास को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके साथ कृष्णा है, उनको डर नहीं लगा। बट जब पांडवास ने अपने शंख बजाए तो उससे कौरवास को बहुत डर लगा, क्योंकि क्या हुआ था उससे, what happened because of that, they, Krishna was with them, their conscience showed confidence, showed, proved to them that we are going to win. This is the significance of blowing conches. Whereas the Kauravas, their conches had no meaning, कोई meaning नहीं था उनका, क्योंकि उनके साथ भगवान नहीं है। Always remember, जो हम conchal बजाते हैं वो हम भगवान की सेवा में बजाते हैं। So that is a sign of purification. Our hearts are getting purified when we are blowing that, when we are blowing. हमने 1.12 में ये पढ़ा था, I'm just reiterating जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि जो भीष्म पितामह जब बजाते हैं कौंशल, तो वो आउट ऑफ हिज नेचुरल कंपैशन दुर्योधन पे तरस खा के कि चलो भाई हम भी बजा देते हैं कि दुर्योधन खुश हो जाए कि हम हम भी वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू विन। बट इन हिज हार्ट्स ऑफ द हार्ट्स भीष्मा न्यू कि जो दुर्योधन है वो गलत कर रहा है, ही इज अ रॉन्ग पर्सन, वो धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए उनको पता था इसकी हाथ योगी, इनका कोई भी चांस नहीं है जीतने का। मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, कृष्णा का कौंशल पंचजन्य है, लॉर्ड कृष्णा का कौंशल का क्या नाम है, पंचजन्य। अर्जुना के कौंशल का नाम है देवदत्त, युधिष्ठिर जी के कौंशल का नाम है अनंत विजय, भीमा जी के कौंशल का नाम है पौंड्र, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणि पुष्पक। तो ये हम लोगों ने अभी तक करे थे कि ये क्या इनके सिग्निफिकेंस है। और आगे हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट, लेट्स रीड द नेक्स्ट वर्स 1.15 में मैंने बताया था कि थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, तो उसमें हमने यही यहाँ पे भगवान ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि Lord Krishna blew his conchal called Panjanya, Arjuna blew the Devadatta, Bhima, the ferocious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conchal Pondra. यहाँ पे हम लोगों का what I wanted to discuss was these 9 points only, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके purport में मैंने यहाँ पे भगवान को बताया जा रहा है, his name is Madhusudan because he killed the name Madhusudan, Madhu, and his name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. गोविंद के, भगवान के हर नाम के मीनिंग है, there are meanings of each name of the Lord. गोविंद इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान हमारे काउस को भी प्लेजर देते हैं और हमारे सेंसेस के भी कंट्रोलर है। अगर हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो लव है, बाकी सब लस्ट है। अगर हम अपने सेंसेस को अपनी सेवा में लगा रहे हैं तो वो काम है। काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है, काम का मतलब है अगर आप अपने सेंसेस को भगवान की सेवा से हटा के अपनी खुद की सेवा में लगा रहे हो, यू आर यूजिंग फॉर योर ओन सर्विस, you are using your eyes to watch TV, you are using your eyes to watch irrelevant videos on YouTube, you are using your eyes to see, play video games, और phone पे unnecessarily प्रजल्पा WhatsApp पे कर रहे हो, तो that is lust, that is not love. You are using your eyes to do darshan of the Lord, you are using your eyes to read scriptures, you are using your eyes to डिवोटीज के दर्शन कर रहे हो भगवान के, तो वो क्या है, वो आपका प्रेम है। यहाँ पे इस पर्पट में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भगवान को क्या डिफरेंट डिफरेंट नामों से क्यों पुकारा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि भगवान मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक डीमन को मारा था। यशोदा नंदन क्योंकि वो भगवान यशोदा जी के पुत्र हैं। पार्थसारथी क्योंकि वो भगवान होके, जस्ट इमेजिन, भगवान होके वो
क्या कर रहे हैं, भगवान होके वो एक ड्राइवर बन गए हैं, चैरियट राइडर बन गए हैं वो अपने भक्त के। जस्ट इमेजिन, भगवान अपने भक्त के लिए ड्राइवर भी बन सकते हैं, तो क्या भगवान हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? हम लोग करते ही नहीं है, हम लोग सरेंडर ही नहीं करते, हम जाते ही नहीं है भगवान के पास। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपना दिमाग यूज करते हैं, वी बिकम फ्रेंड्स विद आवर माइंड, वी ट्राई टू यूज आवर कॉन्टैक्ट्स। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम 10 लोगों के पास जाएंगे, आप हमारी हेल्प कर दीजिए, आप हमारी हेल्प कर दीजिए, आप हमारी, हमारे अपने, हम अपने पैसे के बल से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट हम भगवान का सरेंडर लास्ट में लेते हैं, एंड वो हमारा फर्स्ट काम होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान को ऋषिकेश बुलाया जा रहा है, क्योंकि भगवान को ऋषिकेश इसलिए बुलाया जा रहा है, उन्होंने अर्जुन को डायरेक्शन दिया था बैटलफील्ड में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जो ये हमारा ये युद्ध है, इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तुमको क्या करना है। ही गेव इंस्ट्रक्शंस। पर कब दी थी उन्होंने इंस्ट्रक्शन? जब अर्जुन ने उनको सरेंडर किया था कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बिल्कुल ही वीक पड़ गया हूँ, आप मुझे अब बताओ। तो हमें जाके पहले भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे अब नेक्स्ट जाते हैं। I'm going to share my screen so that you all can read the verses together. Okay. Who wants to read the verses? कौन पढ़ना चाहते हैं? Who wants to read this? There are 3 verses together, 16, 17, 18. कौन 16th verse पढ़ेगा? Try करो, just try. पल्लवी माता जी, 16th verse you read, and then 17th verse Nandini Mata ji, and 18th verse Rohini Mata ji. Okay, go ahead. And धीरे धीरे पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है, एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ना ताकि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। Go ahead पल्लवी माता जी। यस माता जी। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। Very nice. Next नंदी माता जी। यस माता जी। दृष्ट ये वाला 17th काश्यश्च परमेश्वर। यस माता जी। हिंदी वाला पढ़ना आपको? नो माता जी। ओके। काश्यश्च च परमेश्वर अश शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न राक्षसः च सत्यकीश्च च पराजितः। दोबारा से पढ़ो, एक बार एक एक वर्ड को तोड़ के पढ़ो, फिर दोबारा पूरा ढंग से पढ़ो। ओके माता जी। काश्यश्च च परमेश्वासः, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च चापराजितः। काश्यश्च च परमेश्वरः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। Very nice. Anybody else wants to read this again? Anybody wants to try the 17th verse? Yes, Kamakshi Mataji, go ahead. काश्यश्च परमेश्वरः शिखंडिश्च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीश्च पराजितः। सात है ये, में आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा है। सात्यकिश्च पराजितः। सात्यकीश्च पराजितः। थैंक यू माता जी। Yes, Anshu Mataji, go ahead. माता जी इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हिंदी वाला? नो
नीचे नीचे इंग्लिश वाला। ये अच्छा ये वाला। हाँ। हम्म। कशिश्च परमेश्वशा शिखण्डी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट रोहिणी माता जी, 18th वर्स। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक्। वेरी नाइस। पृथक पृथक, प्रिय प्रिय, हाँ। और ये शंखान, शंखान दद्महु, हाँ। दोबारा से पढ़ो एक बार। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक्। शंखणम नहीं है, शंख, ये देखो शंखान है, शंखान, शंखान दद्महु पृथक पृथक। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्। हाँ, वेरी गुड। Because if you see this also, शंखान दद्महु पृथक पृथक। Okay. Now let's read the translation. Lot of word meanings are given. यहाँ पे सबके consuls के नाम भी बताए गए हैं, तो we'll read the translation directly. King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his consul, the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Mani Pushpak. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Shikhandi, Drishtadyumna, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective consuls. सबने अपने बारी बारी से consuls बताए, but like we discussed, the consuls of Kauravas had no meaning, उसका कोई meaning नहीं था, but the consuls of Pandavas meant that we have dharma, we have Krishna with us, and we are going to win. So purport, let's read the purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully that his unwise policy of deceiving the sons of Pandu and endeavoring to enthrone his own sons on the seat of the kingdom was not very laudable. The signs already clearly indicated that the whole Kuru dynasty would be killed in that great battle, beginning with the grandsire Bhishma down to the grandsons like Abhimanyu and others, including kings from many states of the world. All were present there and all were doomed. The whole catastrophe was due to King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. Very nice, very important purport actually. The अभी उस दिन एक क्लास हो रहा था भागवत गीता का ही, तो कुछ नए लोग थे, उनमें से उन्होंने बोला कि यू नो धृतराष्ट्र अच्छे थे, मतलब धृतराष्ट्र वैसे अच्छे थे, बट दुर्योधन वाज रॉन्ग. सो व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू ऑल से? कोई यहाँ पे कुछ कमेंट करना चाहता है? वांट यू टू कमेंट ऑन दिस. डू यू थिंक विद दिस स्टेटमेंट कि दुर्योधन तो ठीक, तो गड़बड़ थे, बट धृतराष्ट्र ठीक थे, यू नो, अदरवाइज ही वाज अ fine person. What do you think? माता जी, कैन आई आंसर? Yes, Palvi Mata ji. माता जी, इसमें धृतराष्ट्र की गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी एक्चुअली. उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, वो गलत कर रहे थे उनके बच्चे, तो उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी. उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी इस चीज की, और युद्ध हुआ तो उन्हें खुशी हो रही थी युद्ध से कि उनके को राज्य मिलेगा, तो वो गलत थे उनके पिता. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ इसी में ही कि भागवत गीता में कितने वर्सेस हैं? 700. और उसमें से कितने वर्सेस धृतराष्ट्र बोले हैं? ओनली 1. वेरी नाइस. कौन सा वर्स है?
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। वेरी नाइस। तो इस वर्ष में हमने क्या सीखा था? I'll let अंशु माता जी आंसर। अंशु माता जी, go ahead and answer। आपका जो आंसर है वो भी बताना, और ये भी बताना कि क्या सीखा आपने, मतलब 1.1 में क्या पता लग रहा था धृतराष्ट्र की किस क्वालिटी का या किस डिसक्वालिटी या कोई जो गलत क्वालिटी है उसका क्या पता लग रहा था? माता जी उस वाले वर्ड्स में ये था कि वो बहुत ही एंजाइटी के साथ ही पूछ रहे थे संजय से कि वहां पे क्या हो रहा है, और उनका मतलब पूछने का मेन मकसद ये था कि मतलब मेरे पुत्र जीत रहे होने चाहिए और जो पांडवास है वो हार रहे होंगे। तो उन्होंने उसके साथ पूछा कि हाँ क्या हो रहा है, कहीं उनको चोट तो नहीं लगी या उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना, या फिर वो पांडवास से हार तो नहीं रहे। और एक और चीज माता जो जो आपने पूछा कि आप क्या कमेंट करना चाहोगे कि धृतराष्ट्र अच्छे थे या नहीं। माता जी अच्छे या बुरे की उसमें बात ही नहीं होती, क्योंकि जब हम धर्म मार्ग को छोड़कर और वो अपने पुत्र वो के उसमें चल रहे थे कि हाय मेरा बेटा है, बहुत प्यारा है मुझे, और मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं है, ये जो कह रहा है वही ठीक है, मेरा प्यारा पुत्र है ये वो, मतलब वो अपने पुत्र मोह में चल रहे थे, वो धर्म के मार्ग वेरी पर नहीं चल नाइस। रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि उनको नहीं पता था कि धर्म मार्ग क्या है। तो जब अब पुत्र मुंह में वो अधर्म किए जा रहे हैं और अधर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें अच्छाई तो ऑब्वियसली नहीं होती, वो बेकार ही माना जाता है। वैसे आप कितनी अच्छे हो, आप कितने दानवीर हो, कितना ही आप लोगों से प्यार से बात कर रहे हो, लड़ाई भिड़ाई नहीं कर रहे हो, बट अगर आप धर्म के मार्ग पर ही नहीं चल रहे तो फिर कहाँ की अच्छाई। आई लव दैट पॉइंट। आपका बाकी सब अंशु माता जी ठीक था। एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि जब वो क्वेश्चन पूछते हैं उनको ये नहीं डर होता उस टाइम पे, अभी तो युद्ध शुरू हो रहा था, उनको ये डर होता है कि ये युद्ध कहीं हो ही ना। उनको लग रहा था कहीं धर्म के, वो धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं ना, तभी वो बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के धर्म का, उनको पता था कि ये दिस इज अ लैंड ऑफ धर्मा, और उनको लग रहा था कहीं उसके इन्फ्लुएंस में आके कहीं पांडवास युद्ध ना करें या फिर कौरवास ही ना करें। तो उनको ये था कि ये युद्ध हो, he wanted the fight to happen, he wanted the war to happen। और ये अभी से नहीं था, स्टार्टिंग से he was very insecure because वो बड़े थे, he was the elder son, but still उनको राज्य नहीं मिला था, उनके छोटे भाई पांडु को मिल गया था क्योंकि वो अंधे थे धृतराष्ट्र, इसीलिए। बट पांडु वॉज अ वेरी पांडु बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे, और वैसे ही वो बहुत अच्छे, एक बहुत ही अच्छे संस्कारी व्यक्ति थे। तो वो मोस्टली वॉर पे ही रहते थे, बाहर ही रहते थे, उनको लगता था कि बाहर ही रहो, ज्यादा ट्रैवल वो उनको अपने भाई की इनसिक्योरिटी का पता था, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स धृतराष्ट्र वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द kingdom and he would be doing wars and traveling and everything। और बाद में भी वो बहुत शांति से अपने भाई को ही दे के किंगडम चले गए थे, राज्य छोड़ के चले गए थे अपनी दोनों वाइफ्स को, कुंती और मदर माद्री को लेके वो चले गए थे, क्योंकि उनको कभी भी अटैचमेंट नहीं थी इन सब चीजों से। एंड बट ऑन द अदर हैंड धृतराष्ट्र वाज वेरी इनसिक्योर स्टार्टिंग से ही, और वही उन्होंने अपने जो ट्रेड्स थे अपने सन में दे दिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू ऑल कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना, इसलिए नहीं कि आपका तो यू आर, आपका तो चलो होएगा ही, आपका उद्धार तो होगा ही आके होके इसमें, बट आप लोग यू विल बी द मदर्स, यू विल बी द मदर्स आर द फर्स्ट गुरु ऑफ देयर चिल्ड्रन। 7 गुरु बताए गए हैं स्क्रिप्चर्स में, और उसमें से फर्स्ट जो गुरु होता है वो मदर होती है। तो अगर आप लोगों की नहीं पता होएगा, आजकल मदर्स को ही नहीं पता होता, मदर्स उठती हैं और बच्चे की स्कूल बस आने वाली होती है, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले उठेंगी, बिना नहाए खाना बना दिया, बिना वही वही आपने अपने बच्चे को दे दिया, वही वैल्यूज आपके बच्चे सीख रहे हैं, उसके बाद बच्चे की स्कूल बस चली गई, आप सो गए, फिर आप 10 बजे उठे। हाँ, या फिर जो वर्किंग है उनके पास वैसे ही टाइम नहीं है टू गिव देयर वैल्यूज, उनके बच्चे पल रहे हैं मेड्स के हाथों, मेड्स की वैल्यूज आ रही हैं उनके अंदर। तो क्या व्हाट इज द लॉजिक? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट that each one of you take Krishna consciousness very seriously. Simultaneously you do your things, you do your studies, nobody is stopping you, and
जो लोग बोलते हैं, अभी मैं पीछे बहुत चीजें दिन से सुन रही हूँ कि टाइम नहीं है, एग्जाम्स हैं, ठीक है, आई नो दीज आर वैलिड रीजंस, या हम लोग भक्ति में आ गए तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। आप लोगों को ये बहुत समझना पड़ेगा, जब आप भक्ति करते हो, भगवान भगवान क्यों भगवान है, भगवान के अंदर 6 ऑपुलेंसेस कंप्लीट है, जिसमें से एक है कि वो ऑल नॉलेजेबल भी हैं, और सिमिलरली उनकी क्वालिटीज हमारे अंदर भी आती हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, इट हेल्प्स अस गेट दोज मोर क्वालिटीज ऑफ देम। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम और इंटेलिजेंट होते हैं, हम अपने टाइम को अच्छे से और मैनेज कर पाते हैं, हम और स्मार्ट बन जाते हैं। भक्ति जब हम करेंगे तो भगवान, हमारा अल्टीमेट भक्ति का जो गोल है वो कृष्ण प्रेम को पाना है, वो तो हम प्रोसेसेस करके पाल इवेंचुअली, दैट इज द गोल दैट वी नीड टू अचीव, एंड दैट वी विल eventually probably achieve by the mercy of Guru and Krishna if we practice religiously. But उसके साथ साथ उसके साइड बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे हमको। हमें आप देखिए, जो भक्त होते हैं उनके फेस पे एक अजीब सा ग्लो होता है, दूर से दिखेंगे, 10 लोग खड़े होंगे, उसमें से एक डिवोटी होगा, अलग से पहचाना जाएगा। तिलक तो चलो, एक तिलक से तो आप पहचान ही जाओगे, तिलक नहीं भी लगाया होगा ना उसने तब भी आप पहचान जाओगे, एक अलग सा ग्लो होगा उसके फेस पे। भक्त जब बात करता है तो सब उससे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं जो साइड में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अब सपोज मैं ट्रेन लेके, मेरे को जाना है, मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही हूँ, और दिल्ली आने के लिए मुझे, मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली है, चंडीगढ़ टू दिल्ली, बट रास्ते में जो बाकी स्टेशन है वहां भी तो ट्रेन रुकेगी रुकेगी ना, वो तो फ्री में, उसके लिए अलग टिकट भी लेनी पड़ेगी मुझे। सपोज चंडीगढ़ के बीच में एक और कुरुक्षेत्र एक स्टेशन आ रहा है, तो मुझे कुरुक्षेत्र के लिए अलग से ट्रेन नहीं लेनी है, मुझे कुरुक्षेत्र टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, मुझे कुरुक्षेत्र ऑटोमेटिकली मैं ड्रॉप हो जाऊंगी। अगर मैं भक्ति कर रही हूँ तो मेरे को अपना अल्टीमेट गोल तो प्राप्त होगा ही होगा इवेंचुअली, बट उसके साथ साथ बाकी साइड की चीजें भी मिलती रहेंगी, जिसमें से ऑटोमेटिकली एक है कि आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। और तो जो लोग बोलते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या हमें और चीजों में टाइम नहीं मिल रहा, वो गलत बोल रहे हैं। आप उनको बता सकते हो, आप उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जो डिवोटीज इतना इतना अचीव किए गए हैं, हमारे हमारे उसमें ही कितने डिवोटीज हैं। सरप्रिय प्रभु जी इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मोहन रूपा प्रभु जी इज सो इंटेलिजेंट, Leela Purushottam Prabhuji is now heading IIT Mandi. So many devotees I see. I see so many devotees personally in IITs जो डिवोशन के साथ साथ अभी स्टूडेंट्स हैं जो, और उनके मार्क्स, उनके जो CGPA स्कोर्स होते हैं, जो भी उनका GPA स्कोर होते हैं, वो बढ़ गए हैं भक्ति में आने के बाद। 6 पे जो बैठे हुए थे वो अब 8 9 ला रहे हैं। कैसे? ये प्रूफ है ना कि ये गलत है जो बोलते हैं कि भक्ति करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र थे, वो खुद ही जो उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी वो उन्होंने पास कर दी। और ये फर्स्ट जो वर्ड्स है उसमें क्लियरली पता लग रहा है, और वो बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वो डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। दैट जो एक बड़ा होता है घर का, वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये मेरे बच्चे हैं या मेरे भाई के बच्चे हैं या उसके बच्चे हैं, वो सबका देखता है। सिमिलरली जो एक राजा होता है उसके लिए सब प्रजा समान है, वो ये नहीं देखेगा जो मेरे अपने पर्सनल लोग हैं मैं उनको देखूं, वो अनबायस्ड होता है, वो सबको इक्वली देखता है और सबका इक्वल हित चाहता है। जो एक बड़ा व्यक्ति होता है उसका यही एक वो है, that no personal favorites, everybody is equally important to that to the king or to the elder person of the family. Okay, so let's now go to the next verse, which is verse number 19. Who wants to read this? Quickly खत्म करना है हमको। मैं चाहती थी आज ये चैप्टर हमारा एटलीस्ट रीडिंग खत्म हो जाए। क्विकली जल्दी करो। Who wants to recite? Okay, Anshu Mataji, next time I want somebody who is not yet recited. All of you, वही same names सबके raise होते हैं। आप सब try करो, these are very easy to recite, not very difficult. Okay, go ahead Anshu Mataji. सघोषु धृतराष्ट्राणां हृदयानि धार्त हिंदी में देखो, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम, सघोषु धृतराष्ट्राणां धार्त सघोषु धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनाद्यन्
सॉरी, तुमुलो भय अनुनाद्यन, तुमुलो भय अनुनाद्यन। हाँ, दोबारा से पूरा वर्ड्स बोलो। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारत, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भय अनुनाद्यनान् नाद्यन्। नाद्यन, अभ्यनुनाद्यन। ओके, तुमोलो अभ्यनुनाद्यन। Okay, who wants to recite this again? Palvi Mataji, you recite. You wanted to recite. सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। Very nice. Okay, next we have Nandini Mataji, we have Kajal Mataji. Kajal Mataji, you recite the next one. So translation, I'm going to read. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. ये हमने अभी पढ़ा, starting में discuss किया. Purport by Srila Prabhupada. When Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conch shells, there was no heartbreaking on the part of Pandavas. Such occurrences are not mentioned. But in this particular verse, it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra was shattered by the sounds vibrated by the Pandavas' party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord, he has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. Very nice. See, beautiful verse. 1.19 है ये. इसमें बताया जा रहा है कि जो कौरवास के जो शंख थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट पांडवास के शंख बजाने से उनके हृदय दहल गए उनके हृदय। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है उनके साथ। भगवान तो उनको तो वो तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता। लॉर्ड कैन नेवर बी डिफीटेड। ही हैज 6 opulences इन फुल। उसमें से एक ये भी है कि ही इज सुप्रीम पावरफुल, ही इज द ही इज ऑल पावरफुल। उनको कोई डिफीट ही नहीं कर सकता। जिसके साथ भगवान है उसको क्या कोई कर सकता है? आप लोग इधर उधर भागते हो डर के हमेशा, कोई सिचुएशन आती है, जैसे मैंने बोला, सब हेल्प मांगते हो इससे उससे, आप क्यों भगवान का शेल्टर क्यों नहीं लेते? भगवान सबसे सबसे पावरफुल है। अगर आप सोचो, इसको ऐसे समझो कि आपका कोई फ्रेंड हो और आपको पता लगे वो फ्रेंड बहुत ही पावरफुल है, मतलब कोई बहुत बड़ा माफिया का मेंबर है, आपको पता है इसको सब इससे डरेंगे, हम इसके पास जाएंगे तो हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता। तो आप देखिए भगवान तो सबसे बड़े इतने तो, उनको तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता। आप जाके उनका शेल्टर लो। कोई भी डर लगे तो हरि नाम करो। जब आपको डर लगता है, कोई सिचुएशन आती है, एग्जाम्स हो गए ऐसे, या कोई भी सिचुएशन आ गई, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, फैमिली के साथ, आप उसी टाइम शेल्टर लो होली नेम्स का, चैंटिंग करो उसी टाइम। हम कैसे लेंगे भगवान का शेल्टर? हम अपने गुरु के पास 3 मीडियम है आप ले सकते हो, गुरु, साधु, शास्त्र। उसके थ्रू हमेशा गुरु के पास चले जाओ, किसी वैष्णव से डिस्कस करो, या फिर शास्त्र पढ़ो। देन यू अदरवाइज रीड शास्त्रास, then you get the answers. You take the shelter of the holy names, immediately you start chanting। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको देखना उस टाइम पे आपको इतना शांति मिलेगी, आपको you will realize कि अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। और जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए, कल ही हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे, और कल एक वो जो मैंने आपको मैसेज भी पोस्ट किया था उसमें यही था कि प्रभुपाद ने जो कोट बताया था, प्रभुपाद वाज सेइंग कि जब पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो उस टाइम पानी में रिपल्स दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है, तो उस टाइम पे आपको दिखेगा नहीं पानी के नीचे क्या है। सिमिलरली जब आपको गुस्सा आता है या आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कुछ टेंशन में, तो आपको समझ नहीं आता व्हाट टू डू नेक्स्ट। उस सिचुएशन में कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ और चैंटिंग करो। यू डोंट हैव टू टेक डिसीजंस इन दैट मोमेंट। मैं हर बार यही बोलती हूँ, हम लोग का प्रॉब्लम यही है, हमें सारे डिसीजंस उसी मोमेंट में लेने होते हैं। छोड़ दो 1-2 घंटे या एक रात छोड़ दो, नेक्स्ट डे लेना उस पर डिसीजन, वो कुछ नहीं होएगा, क्योंकि उस टाइम पे एजिटेशन में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। So one who takes shelter of the Supreme Lord, he has nothing to fear. Next, 1.20. Who wants to recite this? Kamakshi Mataji, did you raise your hand?
You wanted to read? Mataji, I raised my hand for asking a question, but Mataji, Okay. I will read this. Okay, go ahead and ask the question. Mataji, now. Yes, Mataji. So, Mataji, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो बोला कि किसी भी आदमी मतलब कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को फर्स्ट ही मतलब कि कुछ डिसीजन बिना लिए हमें हमेशा भगवान के लोटस फीट में हमेशा सरेंडर कर देना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए। तो माताजी ये सेम ही मतलब कि चीज अप्लाई होता है जब मतलब हम लोग को कि एक डोमिनेंट पर्सन के साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि माताजी स्कूल्स में बहुत होता है कि कुछ लोग होते हैं कि हम लोगों की गलती भी नहीं होती और फिर भी वो लोग हमें बुरा भरा बहुत सारी गाली या मतलब कि वो सब देते हैं और फिर हम लोग को बहुत बुरा लगता है। सो माता जी वैसे ही हमारे पढ़ाई में और इवन इन आवर भक्ति हमें बहुत हैम्पर करता है। सो माता जी इसको हम कैसे मतलब वेरी रोक नाइस सकें? क्वेश्चन कामाक्षी माता जी। मैं भूल जाती हूँ कि एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ कि आप लोगों का टाइम और हम लोगों का टाइम बहुत चेंज हो गया है। मतलब fortunately I was fortunate that in my school also I was never bullied. As such I was never bullied, but I'm realizing with age ये कली का इफेक्ट जितना बढ़ रहा है और लोगों का डाउनफॉल हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, एज ऑफ हिपोक्रेसी और क्वारल है, लोग बढ़ेंगे ही है सब। तो मैं भूल जाती हूँ कि आप लोग को वो सिचुएशन डील करना पड़ रहा होगा। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम श्योर ऐसे ये सब बाकियों को भी ये क्वेश्चन दिमाग में होगा। सो when this is happening in school especially or around you in your personal life somewhere outside school, koi friends hain jo who are bullying you, or then the best is you ignore. Don't get into a conversation with them. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रूव करने लग जाते हैं, इसने मुझे बोला हम भी इसको मजा चलाएंगे, हम भी बोलेंगे, इसने बोल कैसे दिया। बट अगर आपको याद हो लास्ट हमने जब लेक्चर डिस्कस किया था, मैंने बोला था आपको कि overcoming difficult situations में I said, did you attend that lecture, overcoming difficult situations? माताजी I didn't attend it because I had some other class. माताजी मुझे वहां पर जाना पड़ता है तो Why इसीलिए didn't मैं you नहीं कर watch the पाई। video? I shared the video also. We have our channel of Ashray Vaishnavi Forum YouTube channel. That video is there. Go and watch that video. Okay? ओके After माताजी। the class, you must watch that video. A lot of all your questions will get answered. So now, just to give you a short answer right now, कि don't get into a conversation. Don't get. हमारे arguments mostly इसलिए होते हैं. Arguments का solution कभी argument नहीं होता. आप आग में और घी डालोगे तो आग बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। आग को बुझाने का क्या तरीका है? व्हाट इज द बेस्ट वे? उसमें घी डालना बंद कर दो, सिंपल, अपने आप बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद। आप हमारे साथ क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, राइट? हम अपने आप को कि हम ठीक है, ये गलत बोल रहा है, और जब हम प्रूव करते हैं आगे से वो भी व्यक्ति चुप नहीं रहेगा, वो भी बोलेगा, फिर हम यहाँ से एक और बोलेंगे, वो भी बोलेगा, वो सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है कि आप चुप हो जाओ, डोंट रिएक्ट। अगर कोई आपको बुली भी कर रहा है, कितना कर लेगा? 50 बार करेगा, 60 बार, उसको समझ आ जाएगी ये कुछ बोलता ही नहीं, वो चुप हो जाएगा शांति से। एंड अगर आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, दैट पर्सन इज स्टिल नॉट स्टॉपिंग, then you should raise with the authorities. In school, you should raise with the school authorities. If you have somebody at your home, personal life में कोई friends, then you should raise with your parents. और अगर devotional life में है तो raise with your guru. So you must raise with the relevant authority, but relevant. हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है हम 100 लोगों को बताते हैं जाके, पर हम रेलिवेंट पर्सन को नहीं बताते कभी भी। हम एक दूसरे से इधर उधर सबसे बात करेंगे, जो हमें हेल्प कर सकता है उसको नहीं बताते। तो हमेशा याद रखो, उसी को शेयर करो जो आपको हेल्प कर सकता है, या तो इमोशनली हेल्प कर रहा है कि आपको बता के मन हल्का हो रहा है, या फिर आपको गाइड कर रहा है ठीक से, या आपको हेल्प कर सकता है क्योंकि वो जेन्युइनली अथॉरिटी है उस केस में। इस केस में अपने टीचर को शेयर कर सकते हो, घर में पेरेंट्स को शेयर कर सकते हो, बाहर डिवोशनल लाइफ में गुरु को शेयर कर सकते हो। बट बेस्ट इज कि पहले ये अपना के देखो कि यू लर्न टू टॉलरेट। डिवोटीज टॉलरेट। डिवोटीज को जो चीज हमारा लाइफ ना एक सिंपल लाइफ है, उसमें डिवोशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अलग नहीं है। जो हमारे ट्रेड्स डिवोशनल लाइफ में होंगे ना, वही पर्सनल लाइफ में भी होंगे। हम अलग अलग दो हिपोक्रेसी की जिंदगी नहीं जी सकते, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और।
हमें टॉलरेट करना है, बट ये भी नहीं कि हमें अपना मूर्ख बनाना है कि हमें कोई लूट रहा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा कोई बैग लेके जाना चाहता है छीन के, हम बोल रहे हैं ले जाओ, आप छीन रहे हो हम दे रहे हैं उसको कि हम डिवोटीज हैं। नो, डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट, they are very smart, you know, they know Krishna gives them intelligence how to deal with the situation. The more you chant Kamakshi Mataji, the more solutions will reveal to you automatically. अपने आप आपको reveal होने शुरू हो जाएंगे solutions. So don't get into arguments. Try this strategy once, and if they are still not stopping, then you need to raise with the right person, but with the right person जो आपको help कर सकता है, right? Did it Yes, answer? Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. And watch that video of overcoming difficult situations. Now I also wanted to tell you all, ये हम 20th verse अभी नहीं पढ़ेंगे, हम next class में पढ़ेंगे। मुझे आप सबके साथ शेयर करना था कि 3rd मई से हमारा चंदन यात्रा शुरू हो रहा है। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल ऑफ अस, जिसमें भगवान को 3 मई से लेकर 21 दिन तक चंदन लगाया जाएगा। बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, आप प्लीज कोशिश करिए, दर्शन करिए भगवान के चंदन के। पूरा भगवान पूरा पूरी बॉडी पे उनको चंदन से स्मेयर किया जाता है। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कथा है। जो भी हम वैष्णव कैलेंडर में जो भी पर्व आते हैं उन सबके पीछे एक देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट. So this story is very, very personally one of my favorite stories. I'll tell you the story. ज़्यादा time नहीं लेंगे. Just maybe 10 more minutes. तो Madhavendra Puri, this story, the main hero of this story is our Acharya Madhavendra Puri. Madhavendra Puri के जो शिष्य थे वो ईश्वरपुरी थे, और ईश्वरपुरी के जो शिष्य थे वो महाप्रभु थे। हम सब जानते हैं महाप्रभु is none other than Lord Krishna himself, who came to earth 500 years ago with his intimate with intimate associates वो आए थे। तो माधवेंद्र पुरी जो जिनके शिष्य ईश्वरपुरी थे, और ईश्वरपुरी जी के शिष्य आगे कौन थे? महाप्रभु। तो माधवेंद्र पुरी एक बार जब गोवर्धन में होते हैं, और वो गोवर्धन में ही वहां पे जप करते हैं, उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी होती है, वहां बड़ी सिंपल ऑस्टियर लाइफ जी रहे होते हैं। तो एक बार उनके साथ होता है कि वो बिना, अगर आप कोई उनको कुछ खाने के लिए दे देगा तो वो खाएंगे, अदरवाइज वो नहीं खाएंगे। अगर कोई मांग के नहीं खाएंगे, बिना मांगे जो भी मिल जाएगा, ही विल ओनली ईट दैट। तो माधवेंद्र पुरी पाद एक बार कोई उनको किसी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बहुत दिन हो गए, कुछ उनको मिला नहीं भिक्षा में, तो वो मांगते ही नहीं थे। और अब वो बैठे हुए हैं, भगवान तो अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकते, तो भगवान क्या करते हैं, उनके पास एक बच्चे का रूप लेके आ जाते हैं, एक मटका लेके दूध का, और बोलते हैं कि आप माधवेंद्रपुरी जी आप ये पीजिए दूध। अब माधवेंद्रपुरी जी उनको देखते हैं, और देखते ही बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा बच्चा उन्होंने देखा नहीं होता, जिसका कलर एकदम श्याम रंग का, बाल इतने सुंदर काले जेट ब्लैक बाल, इतना सुंदर बच्चा। वो उनको देख के उसके मतलब अट्रैक्शन में खो जाते हैं, और वो मिल्क लेके वो पी लेते हैं, और वो बच्चा फिर चला जाता है। अब माधवेंद्रपुरी जी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा कौन था। उनको समझ आ जाता है बाद में कृष्णा थे। वो ढूंढते रहते हैं उस बच्चे को, मिलते नहीं है, बड़े दुखी हो जाते हैं। एक दिन सपने में फिर माधवेंद्रपुरी पाद को आते हैं भगवान, और भगवान बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी पाद मैं ही था, आई वॉज देयर, नाउ आई विल नॉट कम इन दैट फॉर्म, मैं आपको दूसरे फॉर्म में दर्शन देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जाके खोदिए, आपको मेरे एक विग्रह मिलेंगे। तो वहां पे खोदते हैं तो बहुत सुंदर एक विग्रह मिलते हैं गोपाल जी के। और जब वो विग्रह मिलते हैं तो वो उनको स्थापना करते हैं उनकी, और उनको पूरा अभिषेक किया जाता है। मतलब उनको वहां पे गिरिराज जी के ऊपर उनको बिठाते हैं, और मतलब उनको बताया जाता है पता नहीं कितने मटकों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। लाइन में खड़े हो जाते हैं सब, और एक मटका को पास करते हैं, उससे भगवान का दूध से, जल से, और बड़ा अच्छा उनका पूरा अभिषेक किया जाता है। और ये स्पेशल जल हम परिक्रमा करते हैं, तो एक कुंड आता है, वहां से ये जल लेके उनसे भगवान का अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद जब बहुत अच्छी सेवा करते हैं माधवेंद्रपुरी, फिर एक दिन माधवेंद्रपुरी के सपने में दोबारा भगवान आते हैं,
फिर भगवान आते हैं, जब भगवान को कुछ इंडिकेशन देना होता है तो वो हमें भक्तों के थ्रू या कभी ड्रीम्स में ऐसे ही हमें इंडिकेशन मिलते हैं। भगवान हमें डायरेक्ट नहीं आएंगे कलयुग में कि हमें सामने आके खुद बोलेंगे। नॉर्मली हमें भक्तों के थ्रू ही इंडिकेशन मिलता है। जब भक्त हमें कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो भगवान की ही वाणी है। तो भगवान को दोबारा सपने में माधवेंद्र जी को दोबारा सपने में कौन आते हैं? भगवान आते हैं और बोलते हैं कि आप ना पुरी से, मुझे पुरी से चंदन चाहिए, वहां से आप मेरे को चंदन और कैम्फर, जो कैम्फर को हिंदी में आई फॉरगॉट क्या बोलते हैं आप मुझे उससे मेरी सेवा करिए, पर पुरी से लेके आइए। अब देखिए वो गिरिराज जी कहाँ पे है? अपने ब्रज में, मथुरा के पास, मथुरा में। और आप वहां से माधवेंद्रपुरी पैदल निकल जाते हैं। 1700 किलोमीटर, 1700 से 1800 किलोमीटर दूरी पे है पुरी और ये अपना वृंदावन का जो रास्ता है, गिरिराज जी का रास्ता है। 1800 किलोमीटर्स ही वॉक्स, फॉर डेज ही वॉक्स। और उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं। और रास्ते में जब पहुंचते हैं तो रास्ते में एक टेम्पल आता है, एक जगह आती है रेमुना। रेमुना में एक टेम्पल होता है गोपाल जी का। वो जाते हैं वहां पे, और वहां पे गोपाल जी को हर दिन सुबह, रेमुना में अगर कोई गए हैं वहां पे आप देखेंगे कि वहां, ये उड़ीसा में जगह है, पुरी से कुछ 4 घंटे की दूरी पे है। और आप देखेंगे हर दिन सुबह, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द मंगला आरती देयर। मैंने एक बार मंगला आरती वहां अटेंड किया था रेमुना में, और इतना सुंदर आरती होता है। और वहां पे भगवान को हर दिन सुबह खीर का, बड़ी स्वादिष्ट खीर होती है, जो खीर शायद दुनिया में और कहीं नहीं वैसी खीर बन सकती, उसका भोग लगता है सुबह। और जब वो खीर का भोग लग रहा होता है ना, तो माधवेंद्रपुरी जी के मन में आ जाता है कि ये खीर मैं भी अपने गोपाल जी को भोग लगाऊं। उनके मन में ये नहीं आता कि मैं इसको खाऊं, उनके मन में आता है कि मैं ये खीर अपने गोपाल जी को, ऐसा मुझे अगर चखने को मिल जाएगी एक बार, तो मैं चख के इसको ऐसा ही कॉपी करके फिर अपने गोपाल जी के लिए भी बनाऊंगा वहां पे गिरिराज में। तो उनको बाद में इतनी शर्म आती है कि भगवान ने अभी खाई नहीं थी और मैंने ऐसा सोच लिया। अब देखिए डिवोटीज कितने प्योर होते हैं। ही वाज सच अ प्योर डिवोटी कि उनके मन में ये भी नहीं था कि मैं अपने लिए खाऊं, उनके मन में था मैं भगवान की सेवा के लिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बस टेस्ट करने को मिल जाए। तो भी उनको इतना गिल्ट होता है कि मेरे दिमाग में ऐसा आ कैसे गया। और ये सोच के वो वहां से चले जाते हैं और जाके मार्केट प्लेस में जाके वहां सो जाते हैं, मतलब वहीं बैठ छुप जाते हैं। उस दिन फिर रात को जो पुजारी होते हैं, गोपाल जी के जो पुजारी होते हैं, उनके सपने में भगवान आते हैं। और गोपीनाथ आते हैं, और गोपीनाथ बोलते हैं उनके पुजारी को, माधवेंद्र के, आप ऐसे जाइए कि एक मार्केट में वहां पे एक माधवेंद्रपुरी पाद बैठे हुए हैं और वो सो रहे हैं। मैंने उनके लिए ना खीर चुराई है, मेरे हाथ में पीछे रखी हुई है, वो खीर लेके आप उनको दे दीजिए। सोचिए भगवान उनके लिए खीर चुराते हैं और छुपा लेते हैं अपने पीछे, अपने वस्त्रों में छुपा के रख लेते हैं। तो पुजारी सुबह उठते हैं, देखते हैं तो सच में वहां एक खीर का छोटा सा एक वो पड़ा होता है, एक छोटा सा मटकी पड़ी होती है। वो बहुत वो जाते हैं कि माधवेंद्रपुरी कितने ज्यादा अच्छे भक्त होंगे कि भगवान इनके लिए चोरी कर रहे हैं। तो वो जाते हैं और फटाफट माधवेंद्रपुरी को ढूंढते हैं, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कहाँ हैं आप। और पूरे वहां पे पूरा रेमुना में बात फैल जाती है कि माधवेंद्रपुरी जी के लिए इन्होंने, भगवान ने खीर चुराई है। तो माधवेंद्रपुरी जाके वो उनको देते हैं, माधवेंद्रपुरी को बताते हैं, माधवेंद्रपुरी वो खीर खाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं उस खीर को खा के। पर उनको फिर बहुत शर्म आती है कि मेरे को फेम मिल रहा है। यहाँ एक भक्त होता है वो कभी भी फेम की इच्छा नहीं करता है। जो भी एक अच्छा डिवोटी होगा, ही वुड नेवर वांट फेम, वो हमेशा दूसरों को आगे रखेगा, उसको अपने फेम का कुछ नहीं उसको फर्क पड़ता। वो उसको पता है कि जो भी उसका फेम है कुछ है, उसका कुछ नहीं है, वो सब भगवान का दिया हुआ है, गुरु की कृपा है वो। तो वो उनको बड़ी शर्म आती है ये, और वो जाके छुप जाते हैं वहां पे कि अब सबको पता लग गया तो लोग उनको ढूंढेंगे। और वो क्या करते हैं, जो उन्होंने खीर खाई होती है, वो मटका, खीर खाने के बाद उस मटके को पीस तोड़ के रख लेते हैं, और वो तोड़ के अपने कपड़े में रख लेते हैं, अपने गमछे में बांध देते हैं। और हर दिन सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा उसको, मटके को ही खाते हैं, मटके के पीस करके उसको पीस के रोज थोड़ा थोड़ा खाते हैं और एक्सटेसी में आते हैं एकदम। अब वो क्या करते हैं, माधवेंद्रपुरी जी जब ये फेमस हो जाता है उसके बाद वो पुरी जाते हैं। तो पुरी में भी ये चीज बहुत फेमस हो जाती है कि यहाँ ऐसे एक तो माधवेंद्रपुरी पाद हैं जो बहुत अच्छे डिवोटी हैं, जिनके लिए भगवान ने स्वयं खीर चुराई है। अब वो खीर लेके
जब वो जाते हैं वहां, तो अथॉरिटीज जो उस टाइम पे क्या होता था, गवर्नमेंट के पास ये पूरा होता था वो, कि चंदन भगवान जो भी जितना जगन्नाथपुरी में चंदन रहेगा वो सब गवर्नमेंट हैंडल करता था। तो वो उनको वहां पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चंदन एंड कैम्फर उनको देते हैं कि आप ये ले जाइए अपने बेटी के लिए गिरिराज में, गोवर्धन वापस ले जाइए। तो वो गोवर्धन के लिए निकलते हैं, वापस रास्ते में दोबारा रेमुना आता है, रेमुना में वो एक रात स्टे करते हैं। तो उस रात फिर से उनको सपना आता है, दोबारा से, अब कितने 3 बार उनको सपना आ गया, थर्ड सपना है। उनको सपना आता है और गोपीनाथ बोलते हैं कि जो गिरिराज में जो भगवान होते हैं, वो बोलते हैं कि आप जो गोपीनाथ डेटी हैं रेमुना में, आप उनको ही ये चंदन लगा दीजिए, आप मेरे लिए मत लाइए, मैं और उनमें कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए भगवान को पता है कि अभी ये गए हैं, अब इतना सारा चंदन लेके वापस कैसे आएंगे उठा के। और फिर रास्ते में उस टाइम पे भगवान को पता था बहुत अटैक हो रहे थे, जो मुस्लिम्स थे वो बहुत अटैक कर रहे थे उस टाइम हिंदूज पे। तो उनको था ये इन पे अटैक हो सकता है, तो भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका डिवोटी दुखों से गुजरे। और हमारी लाइफ में जो हमें दुख लिखते हैं ना, वो एक्चुअली दुख नहीं होते, हमारी प्योरिफिकेशन होती है, हमारे कर्म कट रहे होते हैं। और भगवान चाहते हैं कि हम अपने कर्म काट के फटाफट वहां जाएं, दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु ना के बंधन में नहीं फंसे। इसीलिए भगवान हमें टेस्ट देते हैं कई बार, पर वो हमारे लिए खराब नहीं होते, वो हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। दुख भी है सुख ही है, ये भी समझिए। जो मटेरियल वर्ल्ड में जिन्हें हम दुख कहते हैं, एक डिवोटी के लिए वो सुख ही है, क्योंकि उससे उसके प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उससे उसके प्रारब्ध कर्म, जो पिछले जन्म के कर्म है, वो कट रहे होते हैं। तो भगवान बोलते हैं आप यहीं रुकिए और इन्हीं को लगाइए। अब जो गोपीनाथ होते हैं, इनका नाम खीरचोर गोपीनाथ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खीर चुराई होती है माधवेंद्रपुरी के लिए। तो वो जो चंदन है वो खीरचोर गोपीनाथ को 21 दिन तक लगाया जाता है। तो ये जो दिन है ये स्टार्ट होगा परसों से, 3 मई से। तो आप लोग के घर में डेटीज है, आप हर दिन चंदन, फ्रेश चंदन, जो चंदन स्टिक को लेके घिस के लगा सकते हैं। गर्मी गर्मी से भगवान को राहत मिलती है और भगवान बहुत खुश होते हैं सर्विस से। तो ये उस दिन अक्षय तृतीया भी है, अक्षय तृतीया वाले दिन और भी बहुत ऑस्पिशियस, अक्षय तृतीया इज अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। चैंट मैक्सिमम राउंड्स दैट डे। चंदन यात्रा स्टार्ट होगा, हो सके तो भगवान के दर्शन करिए जाके। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माधवेंद्रपुरी पाद। हमेशा हमें पता होना चाहिए कि फेस्टिवल कोई भी होता है तो उसके पीछे क्या कथा है। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ है, वो गलत है, ये माइथोलॉजी नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना हिंदू माइथोलॉजी, ये टर्म ही गलत है। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज इन रियल, ये सच में हुई है चीजें, ये हमारे आचार्यों के साथ शास्त्रों में लिखा गया है। तो आप प्लीज उस दिन चंदन यात्रा को अपने सेलिब्रेट करिए घर में, माधवेंद्रपुरी पाद से प्रे करिए कि वो हमें लगाएं सेवा में। हम भी भगवान जैसे वो गोपीनाथ की सेवा करते थे इतने मन से, हम भी वैसे अपने घर में अपने डेटीज की मंदिर में अथॉरिटीज को फॉलो कर पाए, वैष्णव की सेवा कर पाए। यही हमारा लाइफ का असली वो है। दिस इज द गोल ऑफ आवर लाइफ एक्चुअल। ठीक है, बाकी चीजें भी साइमल्टेनियसली हमें करनी, वो हमें ऑटोमेटिकली उनमें मिल जाएगा। अपने आप वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ इन आवर मटेरियल लाइफ ऑल्सो। एंड यस, आवर एफर्ट्स मैटर। ये नहीं कि हम एग्जाम्स के लिए पढ़ नहीं रहे और हम सोचे कि बिना पढ़े हमें मिल जाएगा, नहीं। एफर्ट्स एंड लॉर्ड्स मर्सी गो हैंड इन हैंड। एफर्ट्स तो साथ में करने ही पड़ेंगे हमको। सो लेट्स end the class today. Any questions? I am happy to take one question before I end the class. Mataji, I have a question. Yes, Mataji. Nandi Mataji, go ahead. माताजी, आपने 2 days पहले माताजी आपने हाउ टू ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशन आपने जो लेक्चर लिया था, तो मैंने वो अटेंड करा था माताजी। माताजी उसमें मेरा क्वेश्चन आपने बोला था सीजीटी के बारे में। तो लाइक माताजी इनके जैसे लाइक हमारी फैमिलीज में भी हमारे ब्रदर्स होते हैं, हमसे एल्डर्स, और हमारे रिलेटिव्स होते हैं बहुत सारे जिनको हम जानते हैं। तो माताजी लाइक हमें उनको भी नहीं देखना चाहिए फेस टू फेस, इवन इफ दे आर टॉकिंग टू अस? हाँ नंदी माता जी, वी शुड टॉलरेट। टॉलरेंस का ना कोई लेवल नहीं है। कोई ये नहीं है कि माता जी 2 दिन टॉलरेट करें, तीसरे दिन हम रिएक्ट कर दें, चौथे दिन। जितना आप टॉलरेट करोगे ना भक्ति में कल ही मैं बता रही थी कि जो असली भक्ति का
जो आपका एक जो ग्रेटनेस है भक्ति में, वो तभी पता लगती है कि आप कितना टॉलरेट करते हो। भक्ति की डेफिनेशन अगर आप बोलो ये अच्छा भक्त है, वो ऐसे नहीं पता लगेगा कि वो कितने राउंड स्टैंड कर रहा है, या फिर वो कितने 16 राउंड तो आपको करने ही करने हैं, या वो कितने अच्छे से श्लोका रिसाइट कर रहा है, या उसको 700 श्लोक लर्न हो गए। नहीं, भक्ति में असली जो भक्ति का एक नापतोल है, वो ऐसे पता लगता है कि आप कितना टॉलरेंट हो, कितना टॉलरेट करते हो। सो यस, यू शुड टॉलरेट, स्पेशली विद फैमिली और जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि द पे ऑफ इज, आप ये देखो हर चीज जो हम करते हैं, मैंने उस लेक्चर में बताया था पे ऑफ क्या है। जो भी आप करो उसमें पहले देखो पे ऑफ कैसे, हमें हासिल क्या होगा। इसको कर देंगे हम तो उससे क्या हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ। कई बार हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देते हैं और रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं। दूसरी बात है कि हम भक्त हैं, अगर हम कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा तो अगले दिन हमसे माला ही नहीं होगी, हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो क्या वो वर्थ है? हम इतना स्ट्रेस में रहेंगे, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट वर्थ इट। So yes, tolerate. That situation will pass. No situation is permanent. Nothing is permanent in life except for change. So माता yes, जी बट tolerate and learn to tolerate and ignore. समवेयर हमारी मतलब मेरी फैमिली में मेरे ताऊ जी Sorry, है और Nandi Mata ji, काफी आपकी मेरी आवाज clear नहीं है. Your voice is माता not जी clear. माता जी आई एम सेइंग दैट मेरी फैमिली लाइक बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, और लाइक मैं ट्यूशन जाती हूँ तो माता जी हमारे जो टीचर्स हैं तो वो भी सर्स होते हैं माता जी। तो माता जी वहाँ पे इनकेस कोई क्वेश्चन भी तो कर सकता है ये चीज की, लाइक आप फेस टू फेस देख के बात क्यों नहीं करता, कोई क्वेश्चन है। नहीं, Nandi Mata ji, I didn't get your question. Sorry, because your voice is very low somehow. Can anybody explain me the question? Yes, speak again. माता जी लाइक हाँ, better. काफी बार ऐसा होता है कि हम्म। हमारे टीचर्स होते हैं तो अगर हम उनकी तरफ लाइक फेस टू फेस अगर हम देख के नहीं बोलते तो वो हमें इस चीज में भी डांटते हैं। तो क्यों तो फेस माता टू जी फेस आप क्यों नहीं बोल रहे हो उनको? no माता जी like you said like if we see any other man's face then also we are losing our chastity माता जी। ये रूल क्या वहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए लाइक हमारे No, फैमिलीज में अगर no, ब्रदर्स भी no. तो I think you took it wrong. अगर आप किसी गलत इंटेंशन से देख रहे हो तब ऑब्वियसली, जब आप किसी से बात कर रहे हो, दिस इज नॉर्मल कम्युनिकेशन एटिकेट कि अगर आप किसी से बात करोगे तो आप उसको ऑब्वियसली फेस टू फेस देख के ही बात करोगे ना, नहीं तो आप कैसे बात करोगे? अब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, आई हैव टू टॉक टू पीपल एंड आई हैव टू लुक इनटू देयर आईज to get their attention. Does that mean I'm losing my chastity? No, I'm not. My intention is clear. What is your, all boils down to intention. Intention क्या है वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटेंशन तो डिफरेंट है ना। अब वो कॉन्टेक्स्ट तब था नंदी माता जी जब आप किसी गलत इंटेंशन से देख रहे हो किसी को, जस्ट टू वॉच दैट पर्सन बिकॉज ऑफ योर प्लेजर। आप समझ रहे हो? यस माता जी। यू अंडरस्टैंड नाउ? यस माता जी। ओके, यस अंशु थैंक यू माता जी। माता जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने My बताया God. वी शुड टॉलरेट अगर लोग No. कुछ भी बोलते हैं। तो माता जी मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारा एक हिंदी में एक पोयम था जो कि माता जी मतलब होगा कि लोग राजस्थान आपकी का था और वो intention गलत है। भगवान से लाइक बहुत ज्यादा अटैच थे, तो उन्होंने भगवान के लिए लिखा था। तो उस टाइम पे एक डिबेट ही हो गई थी हमारी क्लास में रिलेटेड टू भक्ति। तो बच्चों ने लाइक बहुत ज्यादा बुली करा कि क्या भगवान ये वो, मतलब आप समझ रहे हो ना ये सब बोलना। तो जब मैं ये सब सोचती हूँ, मुझे उस टाइम पे भी मतलब नहीं होती ऐसी चीजें टॉलरेट जब भगवान के लिए कोई कुछ बोलता है। तो मैं ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए जब कोई भगवान के देखो, लिए जब भगवान और गुरु के लिए बोला जाता है ना, तो इसमें बहुत डिफरेंट चीजें आती हैं। ये क्या जाता है, मतलब अगर आप भगवान और गुरु के लिए बोला जा रहा है और अभी हम उस सिचुएशन में नहीं है जब हम 100% लोगों को कन्विंस कर दें, तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। सिंपली डोंट हियर दोज थिंग्स एंड लीव दैट प्लेस, दैट्स इट। अगर मैं अब बताऊं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वो तो बहुत एक्सट्रीम भी है फिर, बट आपको कुछ नहीं करना अभी। जब ये बोला जा रहा है ना, तो आप वहां से चले जाइए, सिंपली उठ जाइए। आपको किसी जो भगवान बोलते हैं मेरा नाम मेरे भक्तों को दो, भगवान ये नहीं बोल रहे मेरा नाम दुष्टों को दो।
क्योंकि अभी वो लोग, आप बोलोगे भी ना, वो सुन नहीं पाएंगे, और उन आर्ग्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं है। जब उनका टाइम आएगा तभी वो सुनेंगे। बेस्ट है कि आप धीरे धीरे उनको प्रसाद दो, अच्छा अच्छा कुछ बना के ले जाओ, ऑफर करो, उनको दो। धीरे धीरे उनका जो हृदय है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे दे विल प्रॉब्ली स्टार्ट लिसनिंग टू यू। बट जब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डोंट गेट इनटू दोज आर्ग्यूमेंट्स। अभी हम उतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम उन आर्ग्यूमेंट्स को डिफीट कर पाएंगे। लीव दैट प्लेस इमीडिएटली, डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। दैट्स द Okay, बेस्ट माताजी। थिंग टू डू। बट यही होता नहीं कि वो टॉलरेट नहीं नहीं, हो वही पाता। टॉलरेट ही करना है हमको, वही मैं बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। वो इतना आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि आप प्रीचिंग नहीं कर पाओगे। एक प्रीचर, हमें बहुत प्रीचिंग मूड में रहना है। अगर हम कर देंगे तो हम नेगेटिव प्रीचिंग कर देंगे कि देखो इस कौन के भक्त लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ। बहुत नेगेटिव प्रीचिंग नहीं करना हमको, हमें वहां पे कुछ नहीं करना, हमें बड़ा स्मार्ट इंटेलिजेंटली डील करना है। ओके ओके प्रभु जी, अभी मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ टू कन्विंस यू, मेरा अपना विश्वास है, एंड आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, एंड यू लीव। बट नेक्स्ट माताजी, कि next day कुछ you लोग get होते हैं। prasad, you bring good prasad for them, don't tell them also prasad है normal। घर में अच्छा हम तो हर चीज भोग लगाते हैं, भक्त तो हर चीज ऑफर करते हैं, make pizzas, make cookies, make cakes, offer them and take them। ओ आज मैंने ये बनाया था। धीरे धीरे उनका कॉन्शियसनेस आप देखना चेंज होना शुरू हो जाएगा। बट माताजी, कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज्यादा जेलेसी, जैसे आजकल आप अभी बता रहे थे कि ना हिंदू मुस्लिम ये वाली चीज बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी तो वो मतलब जेलेसी में आके उन्होंने इतना ज्यादा मतलब खराब चीजें बोली, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कोई सोच भी बात नहीं नहीं, वो सकता। उनके कर्म एक है। कि अगर कोई बोल रहा है कि ठीक है माइथोलॉजी है ये वो है, तो हम समझ सकते हैं कि चलो इसको ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। बट इतनी ज्यादा बेकार चीजें कि मतलब किसी ह्यूमन को भी बोले तो उसको भी इतना ज्यादा बुरा लगे, मतलब भगवान के लिए, तो वो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा मतलब टॉलरेट करना। और ये सब फिर लोग बोलते कि हाँ ठीक है, तुम तो बुद्ध बन के चुप बैठ के रहोगे, क्या हाँ, फायदा, कोई तुम बात क्या नहीं, भक्ति दैट्स कर रहे हो, ओके। तुम्हारे हमें पास अपना पाप नहीं है। for us we have a bigger goal। our goal is not to defeat these fools। our goal, look at the goal ना, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल इनको डिफीट करना है, क्योंकि वो उनको भक्त नहीं बनना, उन लोगों को आपको एंगेज करना है, उनको एजिटेट करना है। आप उनका पर्पस पूरा कर रहे हो ये करके। never ever waste your time। personally I'm telling you, I never engage in such conversations। I leave because I know अभी इनका टाइम नहीं आया भक्त बनने का। वो बोल रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं है, वो उनके कर्म है, उनको पाप लग रहा है। कृष्णा विल डील विद देम, दैट इज देयर अकाउंट्स दैट दे आर ओपनिंग। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप वहां से उठ के चले जाओ बस, सिंपल। डोंट गेट इनटू एनी कॉन्वर्सेशंस, डोंट हियर दोज कॉन्वर्सेशंस, डोंट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस। इसी में हमारी जीत है। इससे आप वो नहीं बन जाओगे। इससे आप ये मत सोचो कि हम कावर्ड हो गए। दैट्स ओके, उनके बोलने से हम कावर्ड क्यों हो जाएंगे? व्हाट हमारे को हमारा नाप तोल है कि हमारे गुरु हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमारे कृष्णा क्या बोलते हैं। और ट्रस्ट मी, गुरु और कृष्णा दोनों आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट लीव दैट प्लेस। ओके दीज माताजी, आर ऑल एक्चुअली टेस्ट ऑफ आवर टॉलरेंस। हमें जितना हम टॉलरेट करेंगे ना लाइफ में, हम भक्ति में उतना बढ़ेंगे। हाँ। बट डोंट माताजी वेस्ट योर एक्चुअली, टाइम। हाँ, तो ये जो था ये हमारी ना क्लास ही चल रही थी हिंदी की, तो टीचर ने ही बोला था कि एक्चुअली आप ना अपना पॉइंट बताओ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब भक्ति क्या चीज होती है और कैसे करनी चाहिए। और मतलब आज और मतलब ये एक माइथोलॉजी है या फिर मतलब एक फैक्ट है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो उसमें मोस्टली पीपल वर लाइक कि अरे कृष्णा तो वो तो ऐसे हैं ये हैं क्या, मतलब तो वो बहुत ही मतलब बेकार वर्ड यूज करे थे, लाइक वुमेनाइजर एंड ऐसे सारे। तो वो चीजें मेरे को बहुत ही ज्यादा गलत लगी थी, मतलब मैं काफी रोई भी थी। और फिर मेरे फ्रेंड्स थे कहते कि अच्छा तुम तो बहुत भक्त बनते हो, तो तुम क्यों नहीं कुछ बोल पाए, तुमने क्यों नहीं कुछ करा। तो अभी कोई मेरे बात को बस नहीं। वही चीज याद आई थी, the तो मैं day वही पूछना you चाहती थी। can, that's why I tell you all to learn। see, the day you all learn lots and lots, read scriptures, learn scriptures, learn the verses of Bhagavad Gita, Bhagavatam, and you can quote from those books, then you still do that। otherwise also there is a point, हमें भगवान ना इंटेलिजेंस देंगे, तुम्हें बता देंगे कि यहाँ पे हमें करना है, यहाँ नहीं करना। भक्त इतना टाइम नहीं वेस्ट करता इन सब बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में। वो लोगों को मजा आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट फॉर देम, हमारे लिए नहीं है। आपको अगर लग रहा है दैट यू आर एबल टू कन्विंस देम, अभी हमारा इतना क्वालिफिकेशन हो गया है, देन यू गो इट। अदरवाइज यू जस्ट लीव दैट प्लेस। और अभी मेरे हिसाब से अभी तुम लोग को, और यू नीड टू
progress more in bhakti till the time you can participate in these things. Till then don't. That's it. सिंपल बोलने दो उनको, जो वो बोलते हैं उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम भक्त हैं, हमारे क्या है, हमने उन आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि फायदा नहीं है, वहां पे मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा, वहां पे नुकसान ही होगा। अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे तो और मूड खराब होगा, क्योंकि अभी तुम उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाओगे, उनका टाइम ही नहीं आया। फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी आई कैन सी दैट देयर टाइम हैज नॉट येट कम, so there's no point having those conversations with them. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Kamakshi Mataji, this is last question that I'm taking, and then after that I will end. ओके माता जी। सो माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने एक बार वैसे ही एक अपनी कजिन को एक वीडियो भेजा था, जो आपने भेजा था, आई थिंक वो मोहन रूपा प्रभु जी उसके ऊपर कुछ बोल रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। छोटा सा एक शॉर्ट था वो कि चैंटिंग कैन मीन्स वो ऐसे ही दिया था कि चैंटिंग कैन स्टॉप द वर्ल्ड वार विच इज हैपनिंग, जो अभी जो चल रहा है रिसेंटली। तो फिर तो माता जी मैंने उसको फिर मैंने वैसे सोचा कि आप जैसे बोलते हैं कि हमें हमेशा शेयर करना चाहिए सब कुछ, मतलब भक्ति के बारे में भी हमें लोगों से शेयर करना चाहिए क्योंकि अच्छा होता है। तो माता जी इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी कजिन को ये बात शेयर करूं, तो इसीलिए मैंने उसे शेयर किया। और शेयर करने के बाद उसने फिर वो वीडियो देखने के बाद बोला कि हाउ कैन भक्ति एंड चैंटिंग कैन स्टॉप अ वर्ल्ड वार व्हिच इज हैपनिंग इन सो वायलेंस एंड पीपल आर सो ऑफेंसिव। सो मुझे फिर समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। तो फिर मैंने उसे कुछ कुछ बोल के समझाया, लेकिन फिर माता जी मेरा भी ये डाउट आया, लेकिन फिर माता जी मैंने कुछ करके खुद को समझा लिया। ये देखो, यही माता जी होता मेरा है। ये आई गेट योर क्वेश्चन। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैं बोलती हूँ लोगों के साथ शेयर करो, मैं बोलती हूँ कि जो लोग फेवरेबल हैं, एक 10 नाम अपराध हम लोग सुबह हर दिन पढ़ते हैं। आप आते नहीं हो कामाक्षी कभी भी। स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली एंड स्टार्ट अटेंडिंग द मॉर्निंग सेशंस। जितना आप लोग चैंटिंग करोगे ना, उतना ही आपके वाणी में ना वो बढ़ता जाएगा, उसका वैल्यू होता जाएगा। नहीं तो आप जो बोलोगे ना, लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, अभी आप खुद ही डूब जाओगे। एक डूबता हुआ व्यक्ति क्या किसी को डूबते हुए बचाएगा। 10 नाम अपराध में से जो 9th नाम अपराध है वो है टू किसी अश्रद्धालु को भक्ति का बारे में बताना, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। आप जो कर रहे हो वो एक्चुअली भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों को, जिसमें डिवोशन है उनको मेरा नाम दो। भगवान ये नहीं बोलते रैंडम लोगों को बांटो मेरा नाम। तो जो आप कर रहे हो वो एक्चुअली 10 नाम अपराध में से एक अपराध है कि आप एक अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के बारे में बता रहे हो। तो जो श्रद्धालु व्यक्ति है उसी को बताओ, और जो अश्रद्धालु हैं उनको अभी ज्यादा नहीं उनको बोलो। सिंपल आप बोल सकते हो, कभी कभी चैंटिंग के लिए प्रसाद दे सकते हो, क्योंकि आप देखो, आप बोल रहे हो खुद ही आपके अंदर डाउट आ गया, आप खुद ही अभी नहीं हो ना फिक्स्ड। जब आप खुद फिक्स नहीं हो और वो व्यक्ति कुछ आपको बोलेगा, आप कन्विंस हो जाओगे उनकी बात से। दैट इज सो डेंजरस, a very dangerous situation. That's why I'm saying that don't get into arguments with them. अगर आपको लग रहा है कि इनके डाउट्स हैं, आप मेरे को tell them कि I am not, मैं अभी मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं आता, आप मुझसे मत डिस्कस करो। मैं आपको नंदा माता जी का नंबर दे रही हूँ या अपने किसी सीनियर का नंबर दे रही हूँ, आप उनसे डिस्कस करो। You discuss your question with them. Don't get into arguments with them and try to differentiate किसको भक्ति की जरूरत है उसको बांटना है, रैंडमली जा जाके नहीं बांटना नाम कि हम दे रहे हैं। पहले देखो, भक्त आपको, जब आप भक्ति करोगे, चैंटिंग करोगे, सुबह माला करोगे अपनी टाइम पे, मॉर्निंग आवर्स में उठ के, तो आपको खुद से आपको इंटेलिजेंस आएगी, आपको खुद से पता लगेगा कि ये चीज ठीक है, क्या बोलनी है, और आपकी बात लोग सुनेंगे भी। अभी आपके अंदर खुद ही अभी दम नहीं है तो आप कैसे लोगों को बताओगे। सिंपल आप मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो उनकी सुकृति के लिए, बट डोंट गेट इनटू arguments with them at all. Again and again I'm telling each one of you that don't get into arguments with people because it's not going to help you. वो आपको ही डाउट में डाल देंगे। और जो आप बता रहे हो कि वो बहुत ट्रू है। अगर हम भागवत गीता पढ़ें, भागवत गीता इज लाइक अ लाइफ मैनुअल। उसमें बताया गया है कि एक जो डिवाइन व्यक्ति होता है उसकी क्या क्वालिटीज है, एक डिमोनिक व्यक्ति की क्या क्वालिटीज है। तो अगर उस कहीं भी कोई आपको भक्त नहीं मिलेगा, जो भक्त जो होता है वो चींटी को मारने से भी डरता है। उसको पता है चींटी भी पाँव के नीचे आ जाएगी तो वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, उसको पाप लगेगा।
तो आपको लगता है क्या कोई कोई डिवोटी कभी किसी को वॉर में मारने के लिए निकलेगा, कभी किसी को मारेगा उठा के? नहीं मारेगा। तो अगर सभी डिवोटी बन जाएंगे तो आपको लगता है न्यूक्लियर वॉर्स होंगी? What is the use of these nuclear weapons that people are making? You know, countries are making nuclear weapons so disastrous. भगवान ने हमको इंटेलिजेंस दी है टू प्रोग्रेस इन लाइफ। ये न्यूक्लियर वेपन से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ वो आज तक, मतलब यू नो, जापान इज टुडे आल्सो दे आर सीइंग द आफ्टर इफेक्ट्स। ये क्या कोई डिवोटी कर सकता है? डिवोटी तो चींटी को भी नहीं मारता। तो वॉर कैसे होगी? नहीं होगी। अगर आप सब डिवोटीज बन जाएंगे तो सबको पता होगा कि ये कितना पाप है, ये सब किसी को हर्ट करना, किसी जीव हत्या करना, किसी जीव को मारना, यू नो, किसी को हर्ट करना। तो कोई कोई मारेगा ही नहीं। डिवोटीज आपको लगता है डेलिबरेटली कभी किसी को जाके न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे बैठ के? सो यस, पीपल डोंट नो, बट यस, you are not supposed to yet discuss these very deep matters because right now you are not, you know, you are not there yet. अभी आप खुद डूब रहे हो तो आप कैसे वो करोगे? Now I'm going to end the session. It's already 8:30. Rest of the questions, please leave voice messages on the group and I will respond. Leave the voice messages on the group itself. वो हमारा आश्रय वैष्णवी फोरम के ग्रुप में जो है उसको आप वॉइस मैसेज छोड़िए, मैं उसमें रिस्पॉन्ड करूंगी। नंदी माता जी एंड महक माता जी, प्लीज लीव वॉइस मैसेज। I'm so sorry, I'm not able to take the questions. I need to go now. It's already 8:30 and we have already extended the session by half an hour. So let's all pay obeisances to all the Vaishnavas. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Vaishnav Thakur ki jai. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna.